Hi, everybody, and welcome to yet another edition of Off the Record. I'm Ambarish Baliga. Here, I have a conversation with the founders and management of companies which are listed or in the process of getting listed to understand the company and the sector. More importantly, understand their thought process and vision. Today, I'll be talking about the power distribution sector and a company which caters to this sector, Indo SMC Limited, which is coming out with an IPO soon. The power distribution sector in India is poised for a strong growth, driven by robust demand for economic development, urbanization, renewable energy integration, and power infrastructure modernization efforts. India's total installed power generation capacity grew about 80% over the last decade to over 476 gigawatts, including a significant rise in renewables from 75 gigawatts to 227 gigawatts, fueling demand for ancillary products to upgrade transmission and distribution network. India targets a renewable energy capacity of about 500 gigawatts by 2030. The other big opportunity is the aging infrastructure, due to which there is high transmission and distribution losses, currently about 20%, where there are ongoing modernization plans and investments happening, which will also aid these ancillaries. Indo SMC belongs to this sector and caters through four broad verticals. They are SMC box manufacturing. SMC means sheet molding compound. These are durable, weatherproof electrical enclosures for distribution and metering. Next is gratings. These are lightweight polymer panels that can take huge weight and are used for walkways, platforms, and industrial floors. Then we have current and potential transformers division, which are essential components of electrical substations and distribution systems. Yet another vertical is pultrusions, which are used in window, door frames, electrical supports, cable trays, utility poles, as well as cooling tower parts. I would believe that this new vertical, which has just been introduced, will start contributing going ahead. So let's not waste any more time and let's ask about this and more. Glad to introduce Mr. Neil Nitesh Bhai Shah, MD and CFO of Indo SMC Limited. Welcome to this show, Mr. Shah. Hello, sir. Nice See, to talk with you. thank you. My pleasure. From what I've understood, your products are used right from the power distribution site right up to the end user site, whether it's a production facility or commercial establishment or residence. If you can Right. explain your product profile, that would be great for the investors to understand. Okay. बेसिकली जैसे हम एज एक वन ऑफ द कंपोजिट इंडस्ट्री है, Right, हमारा मेनली काम यूटिलिटीज को बॉक्सेस सप्लाई करने से स्टार्ट हुआ था right, लास्ट 30 ईयर से। मेरे ग्रैंडफादर फिर मेरे फादर, उन्होंने यूटिलिटीज और इलेक्ट्रिक टोरेंट पावर हो गया, अदानी पावर, जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है वहां पे हम लोगों ने काम किया है एज अ okay, सप्लायर। और फिर हम लोगों ने स्टार्ट हमारी जर्नी एज अ मैन्युफैक्चरर की। जो okay, इस इंडो एसएमसी जो अपनी ब्रांड के लिए हम एक बार काम करना चाहते थे, और मेनली हम लोगों ने कंपोजिट इंडस्ट्री इसीलिए चुना है कि आगे जाके जब भी ये मेटल है उसके जगह पे जब भी ये स्मार्ट मीटरिंग होगा या कहीं पे भी कनेक्टिविटी के लिए आपको एफआरपी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। मेन right. हमारा So, फोकस वही था। so basically FRP means it is a polymer, ना? यस, Plastic जो लोग समझते हैं plastic, but it's not really plastic. It's polymer. Yeah. in easy language is a plastic. It's a Right. basically glass fiber जो आपको स्ट्रेंथ देगी एक स्टील की तरह, मेटल की तरह, और Uh-huh. जो यूजिंग होगा एज अ प्लास्टिक। तो आप इजीली 1 सेकेंड, बेसिकली कैसा है कि आप अभी भी जो भी हमारे टावर्स है जिसके लोकेटिंग चाहिए हमें, तो वो भी उसमें एफआरपी ही यूज होता है, तभी आप Right. फ्रीक्वेंसी अच्छे से मैच कर पाओगे। अदरवाइज वो Shockproof आपकी है. फ्रीक्वेंसी, हाँ, ऑप्टिकल्स में आपको इश्यू करेगा। तो मेनली इसी से इस इंस्पायर्ड बाय दिस प्रोडक्ट कि जो आगे जाके हमें एसएमसी, एफआरपी और मल्टीपल प्रोडक्ट जहाँ पे भी कॉम्पोजिट यूज होता है उस पे हम फोकस कर रहे हैं। तो और तो तो जहाँ आप जहाँ आप लोग का फैमिली वाज earlier manufacturing these products या ट्रेडिंग करते करते थे पहले?
पहले हम लोग सिर्फ ट्रेडर्स थे। ओके। मैन्युफैक्चरिंग मेनली हम लोगों ने कई बार फ्यूज गियर और पोर्सलिन की किए हुए हैं जो इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज में यूज होता है, हाँ मगर हाँ। हर बार हम लोग सिर्फ जॉब वर्क करवाते थे। ओके। Right now we are as a manufacturer ओके। because government changed the अपनी pattern के they are already buy from the direct to manufacturer are involved in that. हाँ हाँ। So it's a setback for us in many years back. After that we decided कि अगर हमारे पास खुद के पास मार्केट है तो हम उसको ही फोकस क्यों ना करें, हम किसी और राइट। कंपनी के लिए काम करें, उससे उससे बेहतर है हम हमारे लिए ही काम करें और एक ब्रांड डेवलप करें। तो जो जो मैं पूछ रहा था मिस्टर शाह, ये कंपनी आपने 2021 में सेटअप किया था? बेसिकली इस कंपनी का स्टार्टअप 21 से है, मगर इस राइट। इंडस्ट्री में मैं पिछले 10 साल से हूँ। मैंने मेरी ओके। कैरियर स्टार्टिंग ही यहाँ से की है। बेसिकली मैं लॉ का स्टूडेंट था, उसके बाद मेरे फादर और ग्रैंडफादर का ऑलरेडी बिजनेस था इन सप्लाइंग बिजनेस। पापा राइट। का कुछ कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस था, उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम दिया, मगर सप्लाइंग में मेरे को बेहतर प्रोडक्ट को समझना, फिर उस पे R&D करके उसको बेहतर बनाना, वो सारी सोच मेरे में पहले से थी। तो ओके। उस फोकस मैंने किया और टारगेटली हम लोगों ने उसी इंडस्ट्री को चुना जहां पे हम इजी टू कैटर सर्व कर सकते थे। राइट। राइट। मीन लगता है कई लोगों को कि पिछले 2021 से कंपनी स्टार्ट किए, मगर काम ऑलमोस्ट पिछले 10 साल से इसी इंडस्ट्री में चल रहा था हमारा। ओके। ओके। तो अभी आपके फैमिली का पूरा बिजनेस इसी कंपनी में है? मेनली बेसिकली कैसा है कि मैं फर्स्ट सन हूँ, राइट। तो मेरा मेन बिजनेस यही रहेगा। मेरा ब्रदर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डिजाइनर है, तो ओके। वो एक अलग से चला रहा है। मेनली हम राइट। यहाँ 4 दोस्त मिलके कंपनी स्टार्ट किए थे, नितिन जी, मैं, प्रणय भाई और हमारा चैतन्य भाई। तो ओके। बेसिकली नितिन जी और चैतन्य भाई दोनों टेक्निकल साइड पे थे और पूरा इंडस्ट्री को डेवलप करना उनकी फैसिलिटी थी और उनकी नो हाउ थी। तो राइट। मेनली मेरा काम था मेरे अप्रूवल्स जो मैं हर यूटिलिटी से ला सकता हूँ, क्योंकि लास्ट दादा के साथ में जा रहा था, सबको मिल रहा था। तो जो राइट। अभी नीचे का स्टाफ था तो काफी बढ़ोतरी होके ऊपर आके बैठा है, तो वो बेनिफिट रहता है मेरे को भी हाँ, कि जिसके साथ सबका मैंने पहले पहचान है काम। आपका। हाँ। हम्म, तो या वो नो हाउ रिलेशनशिप। था सेल्स राइट। और टेक्निकल क्लियरेंस, तो वो मैंने ठीक। संभाला। और ओके। परचेस पहले हमारे प्रणय भी देख रहे थे, जो अब मैं ही देख रहा हूँ। हम्म। तो मेनली उसी हिसाब से हम लोग फ्रेंड्स मिले और कंपनी स्टार्ट की, और ओके। वहीं से हम लोगों ने हमारी जर्नी एज अ मैन्युफैक्चरर स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। तो आप यदि आपके दूसरे प्रोडक्ट्स यदि थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दें, जैसे कि मैंने बात किया ग्रेटिंग्स और करंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स, एंड इन केस आई मिस्ड एनी ऑफ योर प्रोडक्ट्स, आप यदि एक्सप्लेन कर सकें तो अच्छा। ठीक है। बेसिकली राइट नाउ के हम लोगों ने स्टार्ट जब बॉक्सेस से किया था, उसके बाद वो एक टेक्निकल प्रोडक्ट था, तो कई अप्रूवल्स उस सब में अटकता था, तो हमने ग्रीटिंग स्टार्ट किया बाय द टाइम। रीजन व्हिच ऑफ अगेन के इज पॉलीमर, व्हिच अगेन हाँ, इज पॉलीमर। again is a राइट। polymer but is राइट। used in walkway and all that procedure। तो वो एक चंक बिजनेस था कि आप जितना भी प्रोडक्शन करोगे, आपको यूटिलिटीज के पावर स्टेशन में या रिन्यूएबल एनर्जी सोलर सिस्टम चलती है वहां पे दे देना है, और ओके। उसका आपको तुरंत रेवेन्यू एक स्टार्ट हो जाता है। तो हमने थोड़ा रेवेन्यू पे भी फोकस किया है। जब भी आप इंडस्ट्री चलाते हो तो आपको एक वर्किंग साइकिल चाहिए, तो उस पे एब्सोल्युटली। हमारा मेनली फोकस था। उसके चक्कर में हम लोगों ने ये मेनली ग्रेटिंग बिजनेस स्टार्ट किया। फिर एलटीसीटी सीटीबीटी था, तो मेजरली नो हाउ कैसा था कि हमें जो ऑर्डर्स मिल रहे थे वो एलटीसीटी के साथ मिल रहे थे, जो मीटर बॉक्स के अंदर लगने वाली थी। तो कई बार हमारे सप्लाई डिले होते थे, रीजन ऑफ कि सिटी टाइम से नहीं आ रही है, तो वो बेसिकली एपोक्सी रेजिन से बन थी। वन काइंड ऑफ ये भी है कंपोजिट प्रोडक्ट। तो ओके। इसके नो हाउ हमारे पास ऑलरेडी थे, क्योंकि लास्ट 30 ईयर से आप यूटिलिटीज में ही सर्व कर रहे हो, तो राइट। आपके ग्रैंडफादर और फादर के पास काफी नॉलेज था उसका। तो हमने उसको चुन किया और इसको नॉलेज में लाके हमने नासिक के अंदर हमारा प्लांट स्टार्ट किया एलटीसीटी सीटीपीटी के लिए। राइट। जो बेसिकली नासिक उसी लिए फोकस था कि वहां पे एबीबी क्रॉम्पटन जैसी बड़ी कंपनियां हैं जिसको हम बैक टू हैंड पे सर्व भी कर सकते हैं। तो एक फोकस उसी लिए था कि हम नासिक में ये प्लांट डालते हैं, और वहीं से हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो एक चंक पड़ रहा था उसको हमने रिकवर किया। और इस साल हमने काफी तेजी से हम लोग अदानी है या इजी सॉफ्ट है सारी रेप्यूटेड कंपनी को सर्व कर रहे हैं। और उसके राइट। बाद हमारा प्रोडक्शन यूनिट
जो पल्ट्रूजन एक्चुअली हर मेटल को रिप्लेस कर रहा है, जैसे पाइप हो गया, फ्रेमिंग हो गई, एक राइट। जाली बनती है, तो सारी चीज वैसे भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर रहे थे यूटिलिटीज में, तो उससे हमें फोकस अच्छा मिला। और उसी के लिए इस साल से हम लोगों ने ऑलरेडी 5 मशीन ले ली है और 5 लेने जाएंगे, जो आगे जाके दुबई के मार्केट और सब में भी हम इजी टू सर्व कर सके, जो एब्सोल्युटली। इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जा सके। मेन हमारा फोकस वही था। सो बेसिकली इस सब में आपका रॉ मटेरियल सेम है अक्रॉस, और जो राइट फिनिश प्रोडक्ट है वो पूरा यूटिलाइज होता है आपके बिजनेस में। राइट बेसिकली कैसा होता है कि आप प्रोडक्ट को एक तरीके से एक नो हाउ से बना सकते हो, उसको कन्वर्ट कैसे करना है वो डाइस पे डिपेंड करता है। मैंने राइट। कई बार ये लैब इंस्ट्रूमेंट भी बनाया है जो हमारे हाँ। फार्मा इंडस्ट्री में यूज होते हैं, तो वो भी मैंने एसएमसी से बनाए हुए हैं। राइट नाउ राइट। वी आर प्रोग्रेसिंग वर्क दैट के हम रेलवेज जो वंदे भारत है, तो वहां पे भी जो बाथरूम्स और वो सब बन रहे हैं वो हैंड मोल्ड से बन रहे हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, तो आप एसएमसी अगर कन्वर्ट करोगे तो इक्विवेलेंट वो स्ट्रेंथ डेवलप होगी, तो राइट। उसको आगे जाके फोकस करके वो प्रोडक्ट अच्छे से बना सकते हो। ओके। सॉरी, बेसिकली कैसा है कि एसएमसी या कंपोजिट इंडस्ट्री एक पे डिपेंड नहीं है, इसका यूजेस राइट। काफी सारी जगहों पे मल्टीपल लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट, तो आप बेसिकली फोकस कर सकते हो कि यूटिलिटी हमारा नो हाउ, और बेसिकली एक क्या बोलते हैं ना होम ग्राउंड था हमारा, तो वहां पर हम एब्सोल्युटली। काफी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो वही पहले फोकस किया कि जैसे ओके। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, यूपी, एमपी। राइट नाउ वी आर इन प्रेजेंस इन 20 स्टेट्स, हम ओके। अलग अलग तरीके से 20 स्टेट्स में सर्व कर रहे हैं। पर हम पर वहां पे पर, पर आपका मेन मेन टर्नओवर केवल 2 या 3 स्टेट से आता है ना, एज ऑफ नाउ। मेजरली सर ये चौथा साल था मेरा, तो हमने राइट। टारगेट ली, और जहां पे भी मैं ऑर्डर उठा लेता हूँ एक बार, तो फिर वो मेजरली कैसा है कि आप टाइम से डिलीवरी करो, वो भी एक बेहतर चीज रहती है, तो हम एब्सोल्युटली। फोकस उसी पे करते हैं। मेजर टर्नओवर मेरा महाराष्ट्र से है, क्योंकि महाराष्ट्र कैपिटल, वैसे भी कैपिटल ऑफ स्टेट है हमारा, तो वहां पे डेवलपमेंट भी काफी तेजी से और बढ़िया चलते हैं। फिर आंध्र प्रदेश से एक बढ़िया है, यूपी से है, गुजरात से है, तो मेजर ये 4 स्टेट थे। मगर अभी राजस्थान से भी काफी अच्छा स्पाइक हमें मिला हुआ है, तो वहां पे भी हम लोग सर्व कर रहे हैं। वहां पे अभी ऑलरेडी प्लांट डाला है किलोट के अंदर, जो ओके। एक्चुअली दिल्ली हरियाणा की बॉर्डर पे आएगा किलोट में, जो राजस्थान के रिको सेंटर में आएगा, तो वहां हमारा ऑलमोस्ट चौथा प्लांट आ रहा है। वहां पे हम एसएमसी बॉक्स और एफआरपी प्रोडक्ट्स हैंड मोल्ड को कवर करेंगे, जो आगे जाके रेलवे में हैंड मोल्ड भी हम प्रोवाइड कर सके। तो फोकस वही है, अगर कंपोजिट इंडस्ट्री में कुछ भी सर्व कर रहे हो तो इन हाउस हमारे तरफ से जा सके और कैटर कर सके। तो इनफैक्ट मैं आपका टर्नओवर देख रहा था, आई मीन FY23 में आपका टर्नओवर था 7.29 करोड़, और FY25 फुल ईयर का टर्नओवर था 139 करोड़, व्हिच मींस 19x सॉर्ट ऑफ अ ग्रोथ। राइट और यदि करंट ईयर का देखता हूँ, 6 मंथ्स का आपने शायद 112 करोड़ का टर्नओवर किया है, तो जस्ट एक्सट्रापोलेटिंग फॉर द फुल ईयर शायद 60% ग्रोथ दिखाएंगे, और पॉसिबली मोर, क्योंकि आई थिंक द सेकंड हाफ इज नॉर्मली बेटर देन द फर्स्ट हाफ। राइट, ये ऑलवेज या हमारी हाँ। इंडस्ट्री का वो एक नो हाउ है कि या पहले 6 महीने से बेहतर हम अगले 6 महीने करते हैं, रीजन ऑफ एब्सोल्युटली। बारिश। मेनली तो बारिश होता है तब काफी काम यूटिलिटीज में बंद रहता है, तो हाँ। हमारा फोकस नेक्स्ट 6 महीने में सबसे ज्यादा रहता है। ऑलवेज एवरी टाइम आप पहले से लेकर अभी तक का ग्रोथ आप देखोगे तो उसी हिसाब से है कि पहले 6 महीने हम लोग स्लो डाउन करते हैं, उसके बाद एक क्लियरेंस मिलता है, फटाफट डिलीवरी करो, वो सब करो, और राइट। मार्च तक ऑर्डर्स कंप्लीट करो। और हाँ। मेनली चीज वही थी कि पहले ईयर जो 7 करोड़ का था, उसके बाद हमने 28 CR किया। रीजन ऑफ कि जैसे ही तीसरे साल में आता ना, तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं, जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो पहले 10% या 15% स्टार्टिंग के लिए मिलेंगे आपको। आप अगर अच्छे से सर्व करोगे, उसके बाद रिपीटिंगली ऑर्डर बढ़ते जाएंगे। और राइट। हम ड्रास्टिकली स्टेट टू स्टेट ओपन भी अच्छे से किए, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गुजरात को कैटर किया, गुजरात में एक नोहाउ बनाया, उसके बाद हम महाराष्ट्र, कर्नाटका, उसको फोकस करते चले गए, जो बड़े बड़े स्टेट्स है, तो वहां से भी रेवेन्यू जनरेट होके आने लगी। तो अगर मेरा ये जब गुजरात ऑलमोस्ट 9 करोड़ 10 करोड़ पे था, तो उसके बाद मैंने और एक स्टेट ऐड ऑन किया, 2 स्टेट ऐड ऑन किए, तो वो 3 गुना हो गया। फिर ओके। हमने आगे टोटल अभी राइट नाउ हम 20 स्टेट्स में प्रेजेंस हमारी है,
तो उसी की वजह से वो आपको मल्टीपल ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि हर जगह काम है। आप एक सिस्टमेटिक टीम बना के काम करोगे तो आप पहुंच सकते हो, और कैडर भी कर सकते हो और सर्व भी कर सकते हो। नहीं, पर जो आप बना रहे हो, आई थिंक देयर मस्ट बी लॉट ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स, जैसे आप हो वैसे काफी दूसरे होंगे, तो आपका और उनका डिफरेंस क्या है? आई मीन, व्हाट इज द पॉइंट? नो हाउ एक दो मशीन लेके अगर बन जाओ बैठ जाओ तो वो बेसिकली कैसा है कि आप जो सर्व करना चाहोगे क्वालिटी और वो सब वो नहीं कर सकोगे। राइट नाउ अगर मेरी कैपेबिलिटी में देखोगे तो 3 या 4 लोग ही है पूरे इंडिया में जो मेरी कैपेसिटी को इनहांस करके सर्व कर रहे हैं। तो राइट नाउ काफी कम लोग हैं इस इंडस्ट्री में, और नो भी ऐसा है, और टीम हमारी बेसिकली टेक्निकल टीम हमने हायर की है जो हमें आगे बेनिफिट देती है, और प्रोडक्ट नॉलेज लास्ट सब लोगों ने 20 से 30 साल से इस इंडस्ट्री में काम किया है, तो वो हमें काफी बेहतर तरीके से इंटीमेट कर रही है। आर&डी भी है आपका? आर&डी डिवीजन? बेसिकली आर&डी डिवीजन अलग से नहीं रहेगा, वो बेसिकली टेक्निकल टीम है हमारी, तो जरूरत पड़ने पर जैसे अगर आर&डी, हाँ, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हम करते हैं कि लास्ट ईयर हम लोगों ने जो एक कंपाउंड बनाया था, तो बेसिकली उस इंडस्ट्री के लिए यूज होने वाला था जहां पे उनको फायर प्रूफ जैसा कुछ रिक्वायर्ड था, प्लस भी नहीं होना चाहिए वैसा रिक्वायर्ड था। उस हिसाब से हमने आर&डी की और उसको हमने सर्व किया कंपाउंड। इनफैक्ट वो मेरा क्वेश्चन था आपको, क्योंकि आई थिंक लास्ट ईयर जो कंपाउंड आपने बेचा, आई थिंक इट वाज अबाउट 10% ऑफ द रेवेन्यू। यस, yeah, so I mean, if that continues going ahead, I mean, will it be a high margin business? Yes, basically it's a high margin. Tata Composite, Mahindra Composite already कर रही है। Basically हमारे पास पहले नो हाउ नहीं थे तो वो टाइम लग रहा था। अभी हमारे पास टीम ऐसी है जिसके पास टेक्निकल स्टफ है वो कि हम कुछ अलग से डेवलप भी कर सकते हैं और अलग से सर्व भी कर सकते हैं, तो वो भी हमारा फोकस आउट है। मगर इस साल ज्यादातर फोकस हमारा प्रोडक्शन लाइन में ही रहा था। रीजन ऑफ काफी सारे क्लियरेंस हमें मिल चुके थे, तो ज्यादातर कंपाउंड हम इन हाउस ही यूज कर रहे हैं, काफी कम लास्ट ईयर से काफी कम बेच रहे हैं। रीजन ऑफ कि हमारा खुद का प्रोडक्शन लाइन हमने बढ़ा दी है, तो अभी फोकस फाइनल प्रोडक्ट्स पे ज्यादा है हमारी। So basically, I mean, are you also looking at providing a solution? Manufacturing तो एक तरफ है, पर I mean, I suppose you are looking at providing a solution, isn't it? जो भी आपके customers हो, क्योंकि मैंने आपका जो देखा है रेवेन्यू में कंसल्टेंसी फीस भी है 1 साल। तो I mean, would you be looking to make this a regular revenue stream? Yes, basically हमने अभी एक प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी का लिया हुआ है लास्ट ईयर, वो कंटिन्यूटी अभी भी चल रहा है, मगर वो वर्कआउट कर रहे हैं, तो राइट नाउ शायद नेक्स्ट ईयर तक वो इन्फ्यूज में आ जाए, वर्किंग में आ भी जाएगा। क्योंकि अभी उस पे भी ड्राइंग्स और वो सब वर्किंग चल रहा है हमारा। तो मेजरली मेरे पास अगर टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल नो हाउ है, तो मैं ज्यादातर इंडस्ट्री को सर्व करना चाहूंगा उस हिसाब से जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ओके। और जो मैं देख रहा था आपका रेवेन्यू ब्रेकअप, ये काफी वॉलेटाइल दिखा मुझे, क्योंकि लास्ट 3 साल में यदि देखते हैं तो एसएमसी बॉक्स का हाई कंट्रीब्यूशन है टू रेवेन्यू, पर लास्ट 6 महीने का यदि रेवेन्यू देखता हूँ वहाँ पे बस बार का is about 65% of the total revenue contribution. So, yes, and at the same time, I also noticed that the top customer in the last 6 months has contributed 65%. तो क्या आपको एक ही कस्टमर मिला बस बार का was a large revenue, and then I mean like we have seen that growth, and the other thing is, I mean, how do you plan to work around this concentration? क्योंकि even if I look at the other years, the top 5 customers concentration is high. So if you just comment on this. बेसिकली कैसा रहता है सर, हमारी इंडस्ट्री उस हिसाब से वर्क कर रही है कि जहाँ पे अगर आप कुछ नया डेवलप कर रहे हो, मैंने लास्ट ईयर ही हमारा नासिक प्लांट एस्टेब्लिशमेंट में आया था हमारा, तो मेनली हमारा फोकस वही था कि सीटीबीटी एलटीसीटी जो भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है उसको डेवलप करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब बस डक का ऑर्डर मिला था, ट्रायल ऑर्डर, तो वो बेसिकली पूरा मेटल में था, तो उसमें कॉपर था और बाकी सारी प्रोडक्ट्स थी, तो उसको हमने चेंज किया, एफआरबी में कन्वर्ट किया। तो उस जिसका ऑर्डर है उसको पसंद आया, तो उसने नो हाउ करवाया हमसे कि 1 साल तक आप हमें ही सर्व करोगे जितना भी प्रोडक्शन होता है।
तो उसकी Right. वजह से हम लोग उसको कंटिन्यूटी सर्व कर रहे हैं, जो एक साल हमारा ऑलमोस्ट इस साल में खत्म होगा। तो अब काफी प्रोडक्ट कैसी थी कि इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल थी, तो Okay. मेनली हमें उससे काफी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ मिला। बाकी एसएमसी ऑलरेडी चल रहा था, वो सिस्टमेटिक ग्रोथ कर ही रहा है, तो उस पर भी फोकस था। तो धीरे धीरे लास्ट ईयर से ज्यादा एसएमसी में हमने इस ईयर में थोड़ा डबल ग्रोथ लिया, मगर अब Right. आगे आगे उस हिसाब से प्लान आउट करते, क्योंकि प्रोडक्ट रेंज अब बढ़ चुकी है हमारे पास। Right. तो हर Right. प्रोडक्ट को कॉन्सेंट्रेट करके उसको उस लेवल पे ले जाना है, मेन चीज वही है हमारी फोकस। और मेनली कस्टमर्स कभी भी हमारे रेगुलर वही रहते हैं, रीजन कि जो भी हम प्रोजेक्ट लेते हैं ना वो 2-3 साल तक का रहता है। क्योंकि Okay. अब अभी हम अदानी को भी सर्व कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर को ऑर्डर मिला था, इस साल हम कंटिन्यूटी उसको सर्व किया आंध्र में, अभी भी रेगुलरली वहीं पे ही हम सर्व करने जा रहे हैं। तो वो रेगुलर रहता है प्रोजेक्ट। कई बार कैसा होता है कि आप रेगुलर, मैंने पहले ही आपको बोला था ना कि मेन चीज वही है कि हम गिने चुने लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो अच्छे Right. से और वर्टिकल तरीके से खड़े हुए हैं। तो काफी सारी कंपनियां आपको कंटिन्यू करना चाहेगी, अगर आपका रेगुलर सप्लाई विद द क्वालिटी हो तो वो भी चेंज करना नहीं चाहेगी, क्योंकि इसमें कैसा है, ये प्रोडक्ट ऐसी है कि इलेक्ट्रिकल के साथ जुड़ी हुई है। तो वो बेसिकली अगर कुछ आप क्वालिटी प्लस माइनस हो जाती है तो बहुत बड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है। तो ज्यादातर कंपनी है जो एस्टेब्लिश है उससे ही काम करेगी। Mm-hmm. जैसे कि आपने कहा, I think you said there are just about 3 other competitors. Totally, four manufacturers are there. Right. पहले मेजरली कंपोजिट इंडस्ट्री में आप देखने जाओ, यूटिलिटीज में जो काम करे, तो मेजरली अभी लास्ट हमने टेंडर में देखा था ये 6 या लोग थे। उसके अलावा टोटल इंडस्ट्री में अगर रेपुटेड भी देखा जाए तो 3-4 लोग ही है। राइट। और दूसरा जो बात है आपने अभी बताया बस बार में, यू सेड अर्लियर उसमें स्टील और कॉपर यूज होता था, यस पर आपने अभी एफआरपी का बनाया है। तो आई थिंक गोइंग अहेड, आई मीन लुकिंग एट द वे कॉपर प्राइसेस हैव मूव्ड अप, तो शायद मोर एंड मोर पीपल विल स्टार्ट यूजिंग एफआरपी। नहीं, बेसिकली एफआरपी कॉपर का सॉल्यूशन नहीं है। बेसिकली एफआरपी इज अ कवर। अगर आप कॉपर थोड़ा दैट कम इज ट्रू। नहीं कॉपर तो पर यूज करना नहीं पड़ेगा, हाँ, कैपोर की जगह आप एल्यूमिनियम कर सकते हो। राइट। एफआरपी सिर्फ कवरिंग में चेंज हो सकता है, मेटल ओके। का रिप्लेसमेंट, मतलब एमएस हो गया या ऐसा कुछ हो गया तो रिप्लेस कर सकता है, जीआई रिप्लेस कर सकता है। क्योंकि एफआरपी का सबसे मास्टर पॉइंट ही वही है कि वो इलेक्ट्रिक को पास आउट नहीं शॉक प्रूफ है, शॉक प्रूफ है बस। हाँ। सो ये कॉपर का रिप्लेसमेंट नहीं, ये बेसिकली कॉपर को सेव कर, बेसिकली अंदर से प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर का एक या आई प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड, या दैट्स ट्रू। And if you talk of your customers, आपके customers क्या ज्यादातर PSUs है या it's a good mix of PSUs as well as private sector? आपने अदानी का नाम लिया। बेसिकली वो मिक्सअप रहता है, कई बार या पीएसयू ईपीसी भी रहते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट भी रहता है, और अभी हम डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी खड़ा कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हैंड टू हैंड कस्टमर्स भी क्रिएट होते जाता है कि अगर जिसके घर में रिक्वायरमेंट है तो वो कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर के वहां से भी ले सकता है। तो उस हिसाब से चेन भी स्टेट टू स्टेट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। तो अभी हमारा मेनली फोकस गुजरात था, उसके बाद महाराष्ट्र में भी 3-4 हमारे डीलर नेटवर्क हमने खड़े किए, क्योंकि महाराष्ट्र काफी बड़ा था, राजस्थान में एक, उस हिसाब से हर स्टेट वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी खड़ा किया हुआ है। ओके। और जो आप अभी फंड्स रेज कर रहे हो, मैं देखा कि उसमें करीब 26 करोड़ आपने ईयर मार्क किया है प्लांट एंड मशीनरी के लिए। पर आई मीन लुकिंग अ बिट डीपर, आई हैव नोटिस्ड दैट आपके पास काफी स्पेयर कैपेसिटी है अक्रॉस ऑल वर्टिकल्स, क्योंकि आपने आई थिंक इन द लास्ट 2-3 इयर्स काफी एक्सपेंशन किया है। सो इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन बेसिकली कि ये प्लांट एंड मशीनरी किसके लिए है। हाँ, बेसिकली हम लोग ये चीज जो भी ले रहे हैं वो नई इंडस्ट्री को कैटर करने के लिए ले रहे हैं। बेसिकली 2000 या 1500 टन के मशीन जो मेरे पास नहीं है वो मेरे को चाहिए, मेन चीज वही है। और नई डाइज डेवलप करनी है नई इंडस्ट्री को कैटर करने के लिए। वो सिस्टमेटिक हम आपको जिस इंडस्ट्री में हम आएंगे कि आगे हम जो आर्मी, रेलवेज और अलग इंडस्ट्रीज है उसको जब कैटर करेंगे तो आपको नो हाउ पता चलेगा कि क्यों रिक्वायर्ड थे ये सारी चीजें। क्योंकि बेसिकली अभी हम फोकस यूटिलिटी इलेक्ट्रिकल पे है, तो आगे हम डाइवर्सिफिकेशन भी करना चाहेंगे, इसीलिए ये फोकस आउट है हमारा। ओके। And if I just talk about the industry,
I mean, like talking about all the four competitors together, what sort of a growth one should expect from this industry? जो हम लोग ने देखा है 19 टाइम्स 20 टाइम्स, शायद वो शायद होने वाला नहीं है आगे जाके. बेसिकली But वो तो कैसा था कि सर हम जब स्टार्ट करते हैं ना चलना तो पहले yeah, दौड़ते हैं, स्टार्टिंग में दौड़ लेते हैं, absolutely, उसके absolutely. Yeah, बाद रेगुलरली स्टेबिलिटी भी लेनी पड़ती है ना. पहले yeah, exactly. ऐसा था कि कुछ जाने को कुछ है नहीं, अब इसको भी मेंटेन कर रहे हैं और आगे का भी डेवलपमेंट देना है, तो उसी हिसाब से कैटर करेंगे. और मैं कुछ ज्यादा नहीं, मगर इंडस्ट्री काफी तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी में प्लस प्रोजेक्ट्स में ग्रोथ कर रही है, Absolutely. इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम कर रही है, तो आगे अच्छा ही ग्रोथ है. अगले 10 साल तक आप जिस इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री जैसे एआई भी आएगा, उसको बैक चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक ही चाहिए. तो Right. मेजरली मैं सोच रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में आगे आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा. प्लस मेटल्स के रेट जिस हिसाब से और जिस हिसाब से इंडस्ट्री फ्लक्चुएटेड हो रही है, ये अपनी अभी भी चांदी होगा या कुछ भी इंडस्ट्री मेटल की फ्लक्चुएटेड काफी है, तो उसमें एफआरपी एक मेजर रोल करेगी. तो आगे आपको बेनिफिट काफी मिलेगा इस इंडस्ट्री में. Sure. और मैंने देखा है कि आपके जो शेयर होल्डर लिस्ट में है वहाँ पे तो एक दो तो काफी अच्छे इन्वेस्टर्स देखे हैं, मार्की इन्वेस्टर्स देखे हैं. And I just hope that post IPO you'll have many more such marquee investors on your shareholder list. थैंक So यू. thanks for patiently responding to all my questions, and I hope watching this podcast helps investors to take the right decision about subscribing to your IPO. And wishing you all the best. थैंक यू And सर. and this is something which I tell all the IPO bound promoters, क्योंकि काफी जो मैंने देखा है उनके लिए IPO एक गोल रहता है, पर I believe listing is just the first step in your long corporate journey. और राइट. मैं होप करता हूँ कि आप कंटिन्यू करोगे कम्युनिकेटिंग टू ऑल योर इन्वेस्टर्स एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि कीपिंग देम अपडेटेड ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन योर कंपनी एंड सेक्टर. तो जनरली सच कंपनीज एंड मैनेजमेंट्स आर लाइक्ड बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड राइट. रिवॉर्डेड थ्रू बेटर वैल्यूएशन. तो ये राइट. याद रखिएगा, एंड आई होप यू विल फॉलो दिस. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. और बेसिकली मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेनली हम लोग बेसिकली मैं एक जिम्मेदारी मानते हैं. अगर एब्सोल्युटली. फंड आ रहा है तो उसकी वो नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक टारगेट अचीव कर लिया. मेरे पे मेरे 27% जो नए पार्टनर्स मेरे को मिल रहे हैं, जो भी बंदे ले रहे हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे और मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं. तो मेरा वही है कि मैं वो ट्रस्ट बिल्टअप रखूं और काफी बेहतर तरीके से काम दूं, तो आगे जाके कंपनी में से साथ ग्रो कर सके हम, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, नॉट अ एंडिंग है. Yes, exactly. So I think that's a right thought process which you have. So wishing you all the best. थैंक यू सर. Thank you.